हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमई आईपीओ। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रणव ठाकर से। प्रणव साहब प्रमोटर एंड होल टाइम डायरेक्टर है मैत्रेय मेडिकेयर लिमिटेड के। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप हमें अपनी कंपनी के बारे में, मैत्रेय मेडिकेयर के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? Thanks, team, for giving us the opportunity and sharing our journey with the team. So, हमने हमारी जर्नी 2019 में स्टार्ट करी एंड इन अक्टूबर 2019 वी स्टार्टेड द हॉस्पिटल। शुरुआत के फेज में हमने हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट वगैरह के लिए जो टाइम देना था वो टाइम दे के इन 2019 13th October we started the hospital. Initially the bed capacity was 67 and soon after we started the hospital it was running well and we were doing well because जो हमारे प्रमोटर्स हैं फाउंडर्स हैं उनकी प्रोफेशनल स्टैंडिंग सूरत एंड साउथ गुजरात में मोर देन 20 ईयर से थी ही. राइट। So we got a very good response from the medical fraternity as well as from the community, and we were doing well. But soon, we all know that unprecedented disaster of the century came up. That was the COVID-19 pandemic. करेक्ट। And then also it was a challenge for us to cope up in the initial phase, but by support of the medical fraternity as well as of the community, we could perform very well, and we got very good support from the people around us, and our team could gear up for those unprecedented disaster activities also. And then we got a recognition from our municipal corporation wherein we were being awarded the empanelment for their own patients also. And then our non-COVID journey also picked up well. And in 2020 we felt the need that some of the our distant geographic location patients are getting left out. So in 2020, because our center of excellence and main forte and the main founder director and managing director, Dr. Narendra Tanwar, he himself is a very eminent cardiologist. We started cath lab with one of the prominent and old trust hospital, that is KP Sanghvi Trust Hospital. There we established a cardiology department with them, and there were two angles of it. First was strategic, of course. Our old city patients were there, those who could not approach to the new cities. That is one part, and another was the philanthropy, because we all are more than 20 years old professionals in the region. So we thought of the trust is doing good activity, and we may add one more department for their philanthropic arm. So we could become a part of that activity, and we started cath lab in 2020, and now we are managing a cardiology department with them. We have our own cardiologist there. We have technical staff with there. We have cath lab there, and the other allied equipment and technologies there. So we are maintaining cath lab there. But in 2020, when COVID struck, it showed us that healthcare infra is the big, bigger challenge for us right now in terms of manpower as well as the infrastructure, physical infrastructure, both. So we conceptualized, some healthcare expansion in 2020 after the COVID, and after establishing our two units in 2021, we entered entered into the MOU for our Valsad unit, because in 2021 we thought that if any COVID impact will be there in the other years, then we may need good infrastructure in the region. So we entered into the MOU in 2021 for our Valsad unit, and that is taking shape, and now it's in final shape. I think in a month or so we are going to inaugurate that unit in 2023. So that is the journey in terms of the infrastructure. In terms of the patient growth also, we have seen year on year patient growth. In 2022, another wave of COVID came up, but that point of time we were geared up in terms of technology, in terms of manpower, in terms of bed strength. So by 2022, we had grown from 67 to 100 beds, and now we are 120 beds. Because in COVID times, we were in need of ICU and general ward beds. In 2023 we were in need of special rooms, so we expanded gradually, and now we are sitting up here with the team with this growth journey, and I wish that our growth journey will continue with the support of the community.
बिल्कुल। तो एक तरीके से कोविड के साथ साथ आपके हॉस्पिटल की शुरुआत हुई और उसके साथ ऑब्वियसली चैलेंजेस तो थे और थोड़ा सा बूस्ट भी मिल गया है उसकी वजह से, राइट? सर, आपके ऑर्ग स्ट्रक्चर के ट्रू। बारे में बताएंगे? आई थिंक एक दो आपकी सब्सिडरीज भी है, तो वो ऑर्ग स्ट्रक्चर कैसे है, कुछ यस उसके सर। बारे में बताएंगे? जो हमारी मेन है मैत्रेय मेडिकेयर लिमिटेड, और जी। उसके साथ हमारी मैत्रेय लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड इज वन सब्सिडी. वी आर मैनेजिंग अवर कार्डियोलॉजी स्टाफ विथ केपी संघवी हॉस्पिटल फ्रॉम दैट सब्सिडियरी. ओके। और जो वलसाड वाला हमारा यूनिट है, दैट इज अगेन अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ मैत्रेय हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, विच इज अनदर ओके। सब्सिडी. ओके, थैंक यू सर। आपके मैं फाइनेंशियल्स देख रहा था, वो 2021, 22, 23 टॉप लाइंस डिक्रीजिंग है, लास्ट 6 मंथ में इट हैज इंक्रीज अगेन टू लाइक नॉर्मल लेवल। तो फ्यूचर Yes. एक्सपेक्टेशन क्या है सर, मतलब कि रिवेन्यू और प्रॉफिट इस कैसा रहेगा? सर बेसिकली इट विल बी द सेम. उसमें अभी जो मैंने जैसे बताया ना सर, सून वी स्टार्टेड, वी हैड एन इम्पैक्ट ऑफ कोविड. और कोविड के चलते फर्स्ट वेव में हम सबको पता है कि रेवेन्यूज बूस्ट हुए थे सबके, करेक्ट। क्योंकि पेशेंट लोड ही इतना था. एंड एवरी हॉस्पिटल हैड डिवाइज्ड देयर ओन पैकेजेस एंड एवरीथिंग. But after the analysis of the COVID expenditure, government has also come out with the packages फॉर द कॉमन मैन. और दैट वाज द नीड ऑफ एन आवर, क्योंकि उस वक्त जो एक्सपेंडिचर्स थे सारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स थे, बिजनेस थे नहीं. सो कम्युनिटी वाज सफरिंग इकोनॉमिकली, एंड देन गवर्नमेंट केम आउट विद द पैकेजेस. सो इन 2022 वी अडॉप्टेड दोस पैकेजेस इन जेन्युइन स्पिरिट. तो उसके चलते आप देखेंगे 2021 में भी हमारा कोविड इम्पैक्ट था 23 करोड़ का. इन 2022 सेकंड वेव में जबकि हमारे पास पेशेंट ज्यादा थे, पर रेवेन्यूज उतने हमने नहीं किए, क्योंकि वी वेर ट्रूली एंड जेन्युइनली फॉलोइंग द गवर्नमेंट पैकेजेस एंड वी वेर नॉट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. सो दैट हमारे कोविड इम्पैक्ट के रेवेन्यू थे 12 करोड़. अगर आप कोविड इम्पैक्ट नलीफाई कर देंगे सर, तो ईयर ऑन ईयर आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगा. इन 2023 was typically our journey. Basically, if we have to consider the financially, then 2023 is typically represent the journey. और हमारे जो अभी एस्टिमेट्स हैं आगे के साल के लिए, और जो हमारे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स हैं, उस हिसाब से हम लोग इन 6 महीनों में भी वही लाइंस पे काम कर रहे हैं, और वही लाइंस हमें अभी रिजल्ट्स भी दे रही हैं, विच वी कैन सी फ्रॉम द फाइनेंशियल्स ऑफ द 6 मंथ्स. तो सर जैसे 2021 का रिवेन्यू ब्रेक होने के चांसेस है 2023 में? सर नॉट 23 में तो नहीं होंगे सर, ओके, बट 24 25 यस 100%. ओके, और अभी गुड जैसे सर। वलसाड में आई एम टॉकिंग ऑफ सेम सूरत यूनिट, पर अगर वलसाड यूनिट हमारा अच्छे से 24 में एस्टेब्लिश हो गया, तो कंसोलिडेटेड फिगर्स विल बी हायर देन दैट. ओके सर, और सर जो यस. आप आईपीओ का प्रोसीड है, इसका मेनली यूज कहाँ कहाँ पर होगा? सर बेसिकली हमारा मेन मोटिव है, हमारा जो वलसाड यूनिट एक्सपेंशन हो रहा है उसके कैपेक्स के लिए हमें वो फंड चाहिए. थोड़ा हमारे जो यूनिट्स अभी हम जो एक्सपांड कर रहे हैं, यहाँ पर भी सर्विसेज हमें एक्सपांड करनी है, सब करना है, तो उसके वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए. माइनर अमाउंट 1 करोड़ जितना हमें हमारे प्रेफरेंशियल शेयर रिडम्पशन के लिए चाहिए. और थोड़ा बहुत जो इसका जनरल ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होगा आईपीओ वगैरह का, उसमें थोड़ा बहुत स्टफ यूज होगा. बट मेन ऑब्जेक्टिव्स आर थ्री. फर्स्ट इज द वलसाड कैपेक्स एक्सपेंशन, सेकंड इज वर्किंग कैपिटल, एंड थर्ड इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर. ओके। सो सर, जैसे आप वलसाड यूनिट की बात कर रहे हैं, तो जस्ट थोड़ा समझने के लिए, वो हब एंड स्पोक मॉडल टाइप का होगा या वो भी एक फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल होगा? क्योंकि वलसाड और सूरत आई गेस कपल ऑफ आवर्स के डिस्टेंस पे है, राइट? Yes, sir. Valsad is 80 kilometers away from Surat, but Valsad itself is a big territory. Though राइट। town population is limited, but Valsad का catchment goes up to Dano. जो ओके। महाराष्ट्र गुजरात जी। के बॉर्डर के एरियाज हैं वहां तक जाता है. सेलवास, दमन, यहाँ से भी पेशेंट्स वहाँ काफी ड्रेन होते हैं. इवन धर्मपुर जो उनका एडजेसेंट प्लेस है, राइट। वहां से भी काफी पेशेंट्स यहाँ वलसाड में ड्रेन होते हैं, बिकॉज यू गेट गुड डॉक्टर्स देयर इन दी स्पेशलिटीज. बेसिकली व्हाट वी हैव प्लान्ड इन दी वलसाड इज अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो वहाँ का अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट है, और वहाँ की नीड भी है, कम्युनिटी नीड. So it will be a full-fledged hospital again. There will be 3 modular OTs. Then the 20 beds ICU beds would be there. We have cath lab there. We have CT scan machine there. Besides the routine operational things, we will be having dialysis machines also there. So वो एक अच्छा हॉस्पिटल ही बनेगा, और वलसाड के लिए एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैंडमार्क हॉस्पिटल बनने जा रहा है. तो
प्राइवेट सेटअप में इतना अच्छा सुपर स्पेशलिटी स्ट्रक्चर वहां वलसाड़ का ये पहला होगा, दैट इज वन पार्ट. Another thing is, in the Surat, we are visualizing ourselves in the field of quaternary care, like organ transplants और इसके लिए. Right. तो इसके लिए भी जो हमें कैचमेंट चाहिए वो कैचमेंट हमें थोड़ा बड़ा चाहिए. और सूरत का मेजर कैचमेंट एरिया इज विद साउथ गुजरात एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र. तो उसमें हमारे फुटप्रिंट्स अगर एक्सपांडेड होंगे तो हमारी रीच भी वहां तक पहुंच जाएगी, जो क्वाटरनरी केयर के लिए हमारे लिए रेफरल पेशेंट जनरेट करेंगे. प्लस दूसरा कैसा है सर कि वलसाड़ में जैसे कोई पेशेंट्स रुकता है, क्योंकि उनको डोर स्टेप सर्विसेज मिलती हैं, तो नेचुरली एनी पेशेंट वुड गो फॉर दैट डोर स्टेप सर्विस. करेक्ट. तो वो पहली सर्विस हमारे वहां लेगा. अगर वो पेशेंट हमसे सेटिस्फाई है, उसको अगर कुछ ज्यादा आगे एग्रेसिव मैनेजमेंट की जरूरत है, दैट नीड्स टू बी शिफ्टेड टू हायर सेंटर, then higher center at Surat is easily available and patient will be convinced more easily. तो पेशेंट्स भी यहाँ के लिए एक फेवरेबल अप्रोच रख पाएगा हमारे लिए. So that was the another thing which we kept in mind. और तीसरी चीज है सर, हमारा सूरत एंड साउथ गुजरात का 20 इयर्स का होल्डिंग है, अभी प्रोफेशनल स्टैंडिंग है हम लोगों का. मेरा, डॉक्टर नरेंद्र तंवर का और मिस्टर विमल पटेल का. तो ये एरिया हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है. सो वी थॉट ऑफ कि इनिशियल एक्सपेंशन हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज में करें और फिर हम थोड़े एडवेंचर आगे सोचेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट मेक सेंस आल्सो, राइट. अपने लॉजिकल आई मीन स्ट्रेटेजिकल एरिया में ही एक्सपेंशन करें. सर, जब हम लोग हॉस्पिटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक दो रिस्क दिमाग में आते हैं. सबसे पहला होता है रेपुटेशन रिस्क, राइट. हॉस्पिटल के बारे में That's true. इमेज भी वर्ड ऑफ माउथ से ही बनती है. एक पेशेंट आके 10 पेशेंट को बताएगा, और सिमिलरली अगर है. कुछ इंसिडेंट खराब होता है तो वो जाके 10-15 लोगों को और बताता है. तो एक तो रेपुटेशन हाँ. रिस्क हो गया, और दूसरा हो गया सर रिटेंशन ऑफ डॉक्टर्स. तो इन दोनों के बारे में Yes. आपका क्या टेक है? Sir, as far as the reputation of the hospital is concerned, we always and everyone will always, try at their best of best efforts कि जितना हो सके उतना पेशेंट को ट्रांसपेरेंट और एथिकल वे में मैनेज किया जाए. और उसके लिए हम लोगों ने जो यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल एडॉप्ट किया हुआ है सिंस बिगिनिंग, when we conceptualized hospital structure also, this was the basic fundamental principle which we all agree. और हम आज की तारीख में भी वो प्रिंसिपल को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इट्स एथिकल एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिकल प्रैक्टिसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम एथिक्स चूक जाते हैं तो भी मुश्किल है बाद में. अगर हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कल को पेशेंट्स को जो एक्सप्लेन करना है, पेशेंट्स को जो आज की तारीख में जितना गूगल से इंफॉर्मेशन आ रहा है, नॉलेज नहीं बोलूंगा मैं उसको, इंफॉर्मेशन बोलता हूँ सर. बिल्कुल. सो उसमें से इंफॉर्मेशन बहुत फ्लड होके आता है. अब वो इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, वो एक डॉक्टर अगर जब तक पेशेंट को लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करेगा, एविडेंसेस नहीं देगा, तब तक वो इंफॉर्मेशन नॉलेज में ट्रांसलेट नहीं हो पाती है. सो अनदर पिलर ऑफ अवर फाउंडेशन इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. And third thing is at economical, rates. Basically, I'm not talking about the charities or discounts, but आप पेशेंट को जब एक एस्टिमेट्स देते हैं उनके एक्सपेंडिचर्स वगैरह के लिए, तो उनके दिमाग में एक चीज रहती है कि हाँ, मेरा इसके आसपास ही खर्च बैठेगा अस्पताल में. क्योंकि सबसे बड़ा एप्रीहेंशन एक तो पेशेंट की कंडीशन को लेके होता है और दूसरा एक्सपेंडिचर के लेके, अनसर्टेनिटीज को लेके होता है. जो अनसर्टेनिटीज हम जितना हो सके उतना मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं हमारे यहाँ, कि उनको जो पहले दिन दूसरे दिन एस्टिमेट दिया गया हो, वो एस्टिमेट्स के अंदर अंदर ही पेशेंट का जो बिल है वो बिल सेटल हो जाए. And believe me, in 98% of cases, we could succeed in that with the help of our professionals, because that is also very important. But at the same time, patient services हमारी compromise नहीं हो, वो भी हम ध्यान रखते हैं सर. और हमारे प्रोफेशनल्स भी नाखुश नहीं हो, क्योंकि आपने जैसे बताया दूसरा इश्यू होता है एक अच्छा डॉक्टर रिटेन करना. करेक्ट. और अच्छा डॉक्टर दो ही चीजों से रिटेन होता है. एक होता है टेक्नोलॉजी, उसको जो कंफर्ट चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो आप एक बार दीजिए. और दूसरी चीज होती है उनके प्रोफेशनल चार्जेस भी होते हैं. तो दोनों चीजें हम बैलेंस करके चलते हैं ताकि पेशेंट के जो पॉकेट्स हैं वो पॉकेट्स लाइट रहें सर, वो उतने हैवी नहीं हो जाए कि उनको हमारे लिए फिर दूसरी बार आने में उनके पांव भारी हो जाए. सो ये दो चीजें हम बैलेंस करके चलते हैं. तो टचवुड इन लास्ट 4 years वी आर एंजॉइंग गुड रेप्यूट इन द रीजन. और जो हमारे शायद गूगल रिव्यूज भी आपको रिवील करेंगे कि community has admired us, and I truly from bottom of my heart thank the community for this.
और उसमें हमारे कोविड सर्विसेज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो मैंने लास्ट में बताया आपको। वी ट्राई टू फिनिश इट अप विद द पैकेजेस व्हिच वी वर प्रिस्क्राइब्ड टू डू। राइट। तो ऑब्वियसली एक रेप्यूटेड नाम है सूरत के अंदर आपका। और जैसे सर आपका आईपीओ 27 अक्टूबर से ओपन हो रहा है एसएमई प्लेटफॉर्म पे, तो आप पोटेंशियल इन्वेस्टर को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर, माय ओनली मैसेज टू माय इन्वेस्टर्स इज कि आप हमारे साथ जुड़िए। जितने अच्छे लोग जुड़ेंगे सर, उतना ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जैसे आगे बढ़ता है, तो हम तो हेल्थ केयर में सर, हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि लोग बीमार पड़े और हमारे पास आए, बट हम इतना जरूर चाहेंगे कि जब भी कोई बीमार पड़े और उनको अस्पताल की जरूरत पड़े, तो वो 100% हमसे जुड़े, ताकि हम उनको अच्छे से अच्छी सर्विस दे पाए। और इन्वेस्टर्स को भी हम यही बताते हैं सर, कि वो जितने अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे, उतने ही अच्छे और बढ़िया तरीके से हम भी आगे बढ़ पाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन जैसे आगे बढ़ेगा, तो वो लोग भी साथ साथ में हमारे साथ ये ग्रोथ जर्नी का पार्ट रहेंगे। सो आई विश कि हम सब लोग एक साथ जुड़ के और एक साथ मिलके एक अच्छे इनिशिएटिव को आगे ले जाएं, ताकि हम सबका ग्रोथ हो, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिटी सर्विस बोथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रणव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम देने के लिए और कंपनी के बारे में विस्तार से बताने के लिए, और आपके आईपीओ के लिए दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू।